نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ ذکر کر مدینے والے دا، ذکر کر مدینے والے دا، تیرا اجڑیا دل آباد ہوئے۔ ذکر کر مدینے والے دا، تیرا اجڑیا دل آباد ہوئے، تیرے دل دیاں سکیاں ولاں تے اودی رحمت دی برسات ہوئے۔ یہ گلشن ہے عاشقوں کا، یہ گلشن ہے عاشقوں کا، محفل سجی ہوئی ہے سرکار کی۔ یہ گلشن ہے عاشقوں کا، یہ محفل سجی ہوئی ہے سرکار کی۔ کیا نور احمدی کا چمن میں ظہور ہے، ہر گل میں ہر شجر میں محمد کا نور ہے۔ سبحان اللہ۔ الحمد لله الذي أبدع الأفلاك والأرضين، والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والدين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم۔ الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله۔ الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا قائد الغر المحجلين۔ رونقی محفل ترجمان اہل سنت عزیز القدر جناب حضرت علامہ مولانا مفتی شہباز حسین چشتی صاحب، خطیب مرکزی جامع مسجد صابری جڑا مالا، و دیگر مقتدر محتشم ذی وقار ذی احترام علماء کرام، معززین شہر، معززین علاقہ، برادران اسلام، برادران طریقت، برادران محبت، خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی یہ نور بدامہ محفل آپ کے جسمانی اور روحانی ناشتے کے لیے انعقاد پذیر ہے۔ حسن ترتیب ہے کہ پہلے آپ کا روحانی ناشتہ کروایا جائے گا اور پھر آپ کی خدمت میں لنگر غوثیہ پیش کیا جائے گا۔ تو حضرات محترم، انسان گزرنے کو بہت ساری جگہوں سے گزر جاتا ہے، لیکن اگر احساس کی آنکھ بند ہو، شعور کی آنکھ بند کر کے گزر جائے تو شاید گزرنے والا کعبۃ اللہ کے پاس سے بھی گزر جائے اور اسے پتہ ہی نہ چلے۔ لیکن جس کی احساس کی آنکھ کھلی ہے، جس کو اللہ کریم نے شعور کی خیرات عطا فرمائی ہے، وہ تو کسی ایک نقش محبت کے اوپر ہی کھڑے ہو کر آنسو بہانا شروع کر دیتا اور اپنے محبوب کو یاد کرنا شروع کر دیتا۔ بڑی خوبصورت بات کہی تھی ڈاکٹر محمد اسحاق قریشی صاحب نے، ان سے پوچھا گیا کہ آپ نفاذ ریاست ضیاء الامت حضرت جسٹس پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ میں مابہ امتیاز کیا چیز دیکھتے ہیں، منفرد چیز کیا دیکھتے ہیں؟ سیرت تو بہت سارے لوگوں نے لکھی ہے،
تو آپ ان کے اندر انفرادیت کیا پاتے ہیں؟ تو فرمانے لگے کہ پیر محمد کرم شاہ کا امتیاز یہ ہے کہ وہ سیرت لکھتے ہوئے بیان کرتے ہوئے اگر کہیں ان کی نظر پڑ گئی کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بلال کے کندھے کے اوپر ہاتھ رکھ کے کھڑے ہیں اور ان سے گفتگو کر رہے ہیں تو پیر محمد کرم شاہ وہاں سے ویسے ہی گزر نہیں جاتے، پھر بہت دھیان سے دیکھ کے گزرتے ہیں ہاتھ رکھا کس نے ہے، گفتگو کس کے ساتھ ہو رہی ہے۔ اس لیے حضرات محترم آج کی یہ شعور افزا محفل دراصل شعور کے دریچے کھولنے کے لیے ہے اور احساس کی دنیا میں ایک نئی زندگی کی لہر دوڑانے کے لیے ہے۔ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، یہ جو قرآن مقدس کی ایک سورہ مبارکہ میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، یہ ہماری روحانی غذا ہے، روحانی غذا ہے۔ جناب سیدنا حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تلک جتنے انبیاء کرام تشریف لائے، اللہ کریم نے سب کی امتوں کو روحانی رزق عطا فرمایا۔ روحانی بالغی کے لیے اللہ کریم نے ان کو روحانی رزق عطا فرمایا ہے، لیکن باقی جتنے انبیاء کرام تشریف لائے جناب سیدنا آدم علیہ السلام کے ماننے والوں کے لیے رزق روحانی تو اترا، لیکن صحیفے تختیوں کے اوپر تھے، تختی کے اوپر رکھ کے جو ہے وہ ان کے روحانی رزق کا اہتمام کیا گیا۔ جناب سیدنا حضرت نوح علیہ السلام کے ماننے والوں کے لیے روحانی رزق تختیوں پہ رکھا گیا۔ جناب سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے ماننے والوں کے لیے روحانی رزق تختیوں پہ رکھا گیا۔ زبور تختیوں پہ تھی، تورات تختیوں پہ تھی اور انجیل تختیوں پہ تھی۔ جتنے انبیاء کرام تشریف لائے ان کے ماننے والوں کے لیے روحانی رزق کا اہتمام تو کیا گیا، لیکن تختیوں پہ رکھ کے ضیافت کی گئی۔ ایک امت محمدیہ وہ خوشبخت امت ہے کہ جن کا روحانی رزق اللہ کریم نے تختیوں پہ رکھ کے ان کو عطا نہیں فرمایا، فرمایا فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ، اے محبوب ہم نے آپ کی امت کا روحانی رزق یہ تختیوں پہ نہیں رکھا، ہم نے آپ کے قلب منیر کے اوپر اس کو نازل کیا، قلب منیر کے اوپر نازل کیا، اور پھر وہاں سے اس روحانی رزق نے ذہن مصطفیٰ کا سفر کیا، فکر مصطفیٰ کا سفر کیا، فکر مصطفیٰ کا سفر کر کے پھر اس نے زبان مصطفیٰ کو خیرات دینے والوں ذرا اس کی نزاکت کو دیکھو، اس کی لطافت کو دیکھو، عطا فرمانے والے نے کتنا لطیف اہتمام کیا ہے۔ فکر مصطفیٰ کا سفر کیا، ذہن مصطفیٰ کا سفر کیا، پھر اس نے زبان مصطفیٰ کو چوما اور پھر اس نے لب مصطفیٰ کو چوما اور لب مصطفیٰ سے چوم کے پھر مصطفیٰ کے داہنے اقدس سے یہ دولت نکلی ہے، اور ادھر یہ دولت نکل رہی تھی، ادھر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دامن میں اس کو سمیٹ رہے جناب حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا اس کو اپنے دامن میں سمیٹ رہی تھی، حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو اپنے دامن میں سمیٹ رہے تھے، اور حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو اپنے دامن میں سمیٹ رہے تھے۔ حضرات محترم، یہ کتنے بڑے اعزاز کی بات ہے کہ اللہ کریم نے ہمیں سینہ مصطفیٰ سے جوڑ دیا ہے۔ اگر کسی کی خواہش ہو کہ میں سینہ مصطفیٰ سے لگ جاؤں، میں سینہ مصطفیٰ سے جڑ جاؤں، میں اس چشمے سے فیض پالوں، میری ملاقات میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو جائے، میں سینہ مصطفیٰ سے لگ جاؤں، وہ قرآن کھول کے بیٹھ جائے، یوں سمجھ لے کہ وہ سینہ مصطفیٰ سے جڑا ہوا ہے۔ تو یہ ہمارا روحانی رزق ہے جو اللہ کریم نے ہمیں عطا فرمایا ہے۔ آپ کی ضیافت کے لیے میں نے قرآن مقدس جو سارے کا سارا ہی جو ہے وہ روحانی خزائن سے معمور ہے، میں نے وہ ایک سورہ مبارکہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ آپ کی خدمت میں کچھ عزکیے دیتا ہوں۔
अल्लाह करीम ने इरशाद फरमाया वलास, मुझे कसम है वक्त की, जमाने की। इसकी 3 तफासीर उलमा ने बयान की है। मुतलक वक्त और मुतलक जमाना इससे मुराद है। मुझे कसम है मुतलक वक्त की, मुझे कसम है जमाने की। इन्नल इंसान लफी खुस्र, बेशक इंसान खसारे में है। इल्लल्लज़ीना आमनू, सिवाय उन लोगों के जिनके सीने में ईमान उतरा, जो ईमान लाए। वअमिलु सालिहात, और जिन्होंने साले आमाल किए, नेक अमल किए। वतवासौ बिल हक़, और हक बात की तलकीन करते रहे। वतवासौ बिस्सब्र, और सब्र की तलकीन करते रहे। हज़रात मोहतरम, परवरदिगार आलम ने जमाने की कसम क्यों उठाई? पहली तफसीर ये है कि जमाने की कसम, ये मुतलक वक्त की कसम। हज़रात, वक्त एक बहुत कीमती दौलत है। ये बहुत बड़ी कीमती दौलत है। जो लोग वक्त की कदर करते हैं, वक्त उनकी कदर करता है। और जो लोग वक्त को जाया कर देते हैं, वक्त उनको जाया कर देता है। बहुत खूबसूरत बात लिखी इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह तआला अलैह ने। आप इरशाद फरमाते हैं, एक दहकान को, एक किसान को, खेतों में काम करने वाले को एक यवाक़ीत व जवाहिर की थैली मिल गई। उसने कहा, फसल पकी हुई है और रोजाना मुझे पहले कंकर चुनना पड़ते हैं, पत्थर इकट्ठे करना पड़ते हैं, और फिर मैं जाता हूँ और अपनी फसल के बनने के ऊपर बैठ के जाके चिड़ियाँ उड़ाता हूँ। आज कितना अच्छा हुआ है, ये घड़े घड़ाए खूबसूरत पत्थर मिल गए हैं। आज चिड़ियाँ उड़ाने का लुत्फ आएगा, आज चिड़ियाँ उड़ाने का लुत्फ आएगा। उसने वो थैली दी और जाके अपनी फसल के बनने पे बैठ गया और बैठ के गुलेल चलाने लगा। एक पत्थर निकाल के उसको गुलेल में रखता और चिड़िया वो फायर करता, चिड़ियाँ उड़ती, उसके नफ्स को तस्कीन होती। ये खेल चलता रहा, वो यवाक़ीत व जवाहिर के साथ खेलता रहा। उसने एक एक करके सारे यवाक़ीत व जवाहिर जाया कर दिए। चंद जब मोती बच गए, उसे ख्याल आया कि मैंने तो आज शहर भी जाना था। उसने वो मोती हाथ में दिए, थैली वहीं फेंक दी और मोती हाथ में दिए, शहर की तरफ रुख कर दिया। जब शहर में पहुंचा, जैसे ही शहर के दरवाजे से इन हुआ तो वहां जोहरियों की दुकान थी, जोहरियों की दुकानें थी, मार्केट थी वहां। जब उसको देखा किसी जोहरी ने, इसके हाथ में कीमती मोती है, वो दौड़ता हुआ आया और आके कहने लगा, मियाँ ये जो तेरे हाथ में मोती है, मैं इसका 1 लाख देने के लिए तैयार हूं, ये मुझे दे दो। इतनी देर में दूसरे जोहरी ने देखा तो वो दौड़ता हुआ आया। उसने कहा, अगर ये लाख देता है तो मैं 1.25 लाख देने के लिए तैयार हूं। इतने में तीसरा भी दौड़ता हुआ आया और उसने कहा कि ये अगर 1.25 लाख देता है तो मैं 1.5 लाख देने के लिए तैयार हूं। जैसे उसका रेट बढ़ रहा था और एहसास की दौलत मिल रही थी, एहसास की आंख खुल रही थी, तो दहकान किसान बैठ के रोने लगे। जोहरियों ने कहा, भाई हमने आपको तकलीफ नहीं दी, मारा नहीं, गजब नहीं पहुंचाया, हमने कोई तेरी हौसला शिकनी नहीं की, हमने तेरे साथ कोई ज्यादती नहीं की, तो ये रोने का मतलब क्या है? मियाँ चीज तेरी है, देना चाहते हो तो दे दो, नहीं देना चाहते तो ना दो, लेकिन रोने का क्या मतलब है? तो दहकान किसान कहने लगा, हाय मेरी बदबख्ती कि जिस एक मोती के ऊपर तुम मर रहे हो, मुझे तो इन जैसे मोतियों की पूरी थैली मिली थी और मुझे पता ही नहीं था कि मेरे पास लाखों की दौलत मौजूद है और मैंने वो चिड़िया उड़ाने में जाया कर दी। आए काश कि मुझे वक्त पे पता चल जाता और मैं इनकी कदर कर लेता। हजरत इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह तआला अलैह ये बात लिखने के बाद इरशाद फरमाते हैं, बंदा ए मोमिन, ये जो सांसें तेरे पास मौजूद हैं, ये कीमती मोतियों की थैली तेरे पास मौजूद है। ऐसा ना हो कि चिड़िया उड़ाने में ये जाया कर दे और जब एहसास हो कि मुझे कितनी कीमती मता मिली थी, कितना कीमती असासा मिला था, उस वक्त तक वो बात गुजर चुकी होगी। बात उस वक्त
वक्त गुजर चुकी होगी और चांस हाथ से निकल चुका होगा। इसलिए आज वक्त है, इन कीमती मौकों की कदर करो और अपने रब की बारगाह में सुरखरू होने का एहतमाम कर लो। तो हजरात, वक्त बहुत कीमती दौलत है। जो कौमें वक्त की कदर करती हैं, वक्त उनकी कदर करता है, और जो लोग वक्त जाया कर देते हैं, वक्त उनको जाया कर देता है। हुजूर सैयदी ज़ियाउल उम्मत हजरत जस्टिस पी मोहम्मद करम शाह नजरी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने बहुत खूबसूरत बात इरशाद फरमाई। आप फरमाते हैं कि बंदा मोमिन की जिंदगी में जवानी इस तरह है जिस तरह माह रमजान में लैलतुल कद्र होती है। मेरे ख्याल में आपने तवज्जो नहीं फरमाई। सुभान अल्लाह। बंदा मोमिन की जिंदगी में जवानी इस तरह है जिस तरह माह रमजान में लैलतुल कद्र होती है। यानी इसका मतलब ये है कि पूरी जिंदगी को यूं गुजारो जैसे तुम माह रमजान गुजार रहे हो, जैसे माह रमजान की सातें मुयस्सर हैं, जैसे माह रमजान की घड़ियां गुजार रहे हो, और जवानी इस तरह गुजारो जैसे तुम लैलतुल कद्र गुजार रहे हो। आप जरा तसव्वुर फरमाएं कि लैलतुल कद्र हो और कोई घर में जो है वो नरमो गुलाल बिस्तर के ऊपर लेट के खराटे दे रहा हो, तो उसके ऊपर अफसोस होगा कि नहीं? उसके ऊपर जो है वो अफसोस होगा कि नहीं? एहसासे महरूमी अगर उसको आ ले और वो जाग पड़े और वो अपनी घड़ियों की कदर कर ले, तो ये उसके लिए कितना अच्छा है। तो हजरात मोहतरम, इसी वजह से नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के इरशाद गिरामी है, फरमाया मिन हुस्न इस्लामिल मर्इ तर्कुहु मा ला याती है। बंदा मोमिन के इस्लाम का हुस्न ये है कि वो अपनी जिंदगी से बेमकसदियत को निकाल दे, लायारी चीजों को निकाल दे। बंदा मोमिन की जिंदगी में ताश की कोई गुंजाइश नहीं। बंदा मोमिन की जिंदगी में ये बिलियर्ड क्लब की कोई गुंजाइश नहीं। बंदा मोमिन की जिंदगी में लूडो की कोई गुंजाइश नहीं। तुझे लूडो की चस्के से आ गई, तुझे ये लज्जत कैसे आ गई, शैतान ने तुझे कैसे गुमराह कर दिया। कितना अच्छा होता अगर तेरे पास वक्त मौजूद था तो तू दरूद पाक पढ़ना शुरू कर देता, तुझे पता चलता कि मैंने अपनी घड़ियों को कितना कीमती कर दिया। हजरात मोहतरम, ये जिंदगी का चांस, ये जिंदगी का मौका फकत एक दफा मुयस्सर आता है, फकत एक दफा मुयस्सर आता है। एक दफा ये वक्त गुजर जाए तो फिर वो लौट के वापस नहीं आता। इसलिए आज जरूरत है कि हम इस वक्त की कदर करें। जैसे जैसे आप वक्त की कदर करेंगे, वक्त आपकी कदर करेगा। वो तालिब इल्म जो अपनी घड़ियों को बेदारी में गुजारता है, मेहनत में गुजारता है, तगदो करता है, जोदे मुसलसल करता है, वो फिर उसकी पोजीशन भी आती है। फिर वो शादा और फरहान घर भी लौटता है और शादमानी का तोहफा अपने वालिदैन को भी आके देता है, और वालिदैन भी मसरूर होते हैं और सबको खुशी होती है कि हमारे बेटे ने मेडल लिया है, पोजीशन ली है। लेकिन जो अपने वक्त को जाया कर देता है, जब नतीजा आता है तो वो खुद भी नादिम होता है और घर वाले भी नादिम होते हैं। तो दोस्ताने मोहतरम, हम अपने आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत हैं और मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में सहाबा किराम ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह, आज हमसे जब मिस्टेक हो जाती है, लग़ज़श हो जाती है, तो हम आपके दरबार गोहरबार में आपकी खिदमत में हाजिर हो जाते हैं और आप हमारे लिए इस्तिग़फ़ार कर देते हैं। या रसूल अल्लाह, उस वक़्त क्या माजरा होगा जब आप इस जहान रंगों से विसाल फरमा जाएंगे। फरमाया, हयाती खैरुल लकुम व ममाती खैरुल लकुम तुरदु अलैया आमालुकुम वमा रायतु मिन खैरिन हमिदुल्लाह वमा रायतु मिन शर्रिन इस्तग़फ़रतुल्लाह लकुम। फरमाया, लोगों, मेरी जिंदगी भी तुम्हारे लिए बेहतर है और मेरी मौत भी तुम्हारे लिए बेहतर है। मौत का कॉन्सेप्ट आप जानते हैं। मौलाना शहबाज अहमद चिश्ती साहब, उनसे आप सुनते रहते हैं, मौलाना अहमद अली साहब से आप सुनते रहते हैं, दीगर उलमा से आप इस्तिफादा करते रहते हैं कि मौत का तसव्वुर ये दुनियावी जिंदगी का खात्मा है और अगले नए जहान में उतरना है।
نیست ہو جانا، نابود ہو جانا، خاکستر ہو جانا، ختم ہو جانا، یہ موت کا تصور نہیں ہے، بلکہ موت کا تصور یہ ہے الموت جسر یوصل الحبیب الی الحبیب، موت تو وہ پل ہے جس سے گزر کے بندہ اپنے حبیب سے جا ملتا ہے، اپنے محبوب سے جا ملتا ہے۔ تو حضرات محترم، میں کیا عرض کر رہا تھا؟ وہ تو میں نے کہہ دیا، اس سے پہلے بات کیا تھی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جان رہے ہیں حیاتی خیر لکم و مماتی خیر لکم، میری زندگی بھی تمہارے لیے بہتر ہے، یعنی میں اس دنیا میں ہوں تو تب بھی تمہارے لیے نافع ہوں، اور میں موت کا ذائقہ چکھ لوں تو پھر بھی تمہارے لیے نافع ہوں۔ نفع ختم نہیں ہوتا، پھر ارشاد فرمایا وما رأیت من تورد علی اعمالکم، تمہارے اعمال میری خدمت میں پیش کیے جائیں گے۔ وما رأیت من شر وما رأیت من خیر حمدت اللہ، جب میں تمہاری کوئی نیکی دیکھوں گا تو میں اللہ کی بارگاہ میں شکر ادا کروں گا، اس کی تعمید کروں گا، اس کی حمد کروں گا، اس کی ثنا گفتگی کروں گا کہ شکر ہے مولا تو نے میری امت کو نیکی کی توفیق عطا فرمائی۔ اور جب تمہاری کوئی برائی دیکھوں گا اللہ کی بارگاہ میں تمہارے لیے استغفار کروں گا۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ اصل میں تو میں وہ احساس آپ کی خدمت میں رکھنا چاہتا ہوں کہ جب آپ کو کوئی کامیابی ملتی ہے تو کون کون خوش ہوتا ہے، اور جب آپ سے کوئی غلطی ہوتی ہے تو کس کس کو پریشانی ہوتی ہے۔ حضرات محترم، بے شک تیری ماں کے ساتھ تمہارا تعلق بڑا گہرا ہوگا، تمہارے باپ کے ساتھ تمہارا تعلق بڑا گہرا ہوگا، تمہارے رشتہ داروں کے ساتھ تمہارا تعلق بہت گہرا ہوگا، لیکن ان سارے تعلقات سے زیادہ جو گہرائی ہے تعلق میں وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، سیدی مرشدی، یا نبی یا نبی۔ جیسے بیٹا کامیاب ہو تو ماں کو خوشی ہوتی ہے، باپ کو خوشی ہوتی ہے، رشتہ داروں کو خوشی ہوتی ہے، اسی طرح جب تم کامیابی کا کوئی زینہ طے کر لیتے ہو، کوئی نیکی کر لیتے ہو تو مصطفیٰ کریم گنبد خضرا میں خوش ہوتے رہتے ہیں۔ یہ تحمید کے کلمات کی ادائیگی بعد میں ہے، پہلے اس خوشی کو محسوس کرنا ہے کہ حضور کتنے خوشی محسوس کرتے ہیں، اور اس احساس کے ریسپانس میں پھر یہ بات نکلتی ہے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے میرے امتی کو نیکی کی توفیق عطا فرمائی۔ اور یہ استغفار کا عمل بعد میں ہے، پہلے میرے نبی کا اس احساس سے گزرنا ہے کہ جب میں غلطی کر دیتا ہوں، آپ سے مسٹیک ہو جاتی ہے، آپ سے لغزش ہو جاتی ہے، تو مدینے والے روزہ اقدس میں پریشان ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اب مجھے اور آپ کو سوچنا ہے کہ کیا ہم نے اپنے نبی کو آپ کے روزہ اقدس میں پریشان کرنا، کیا ہم نے اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ شرمساری بھیجنی ہے؟ نہیں میرے دوستو، آؤ پھر ایسا کام کریں جس کے اوپر اللہ بھی راضی ہو، اس کا رسول بھی راضی ہو۔ آپ ذکر کریں، آپ درود پاک پڑھیں، آپ قرآن مقدس کی تلاوت کریں، آپ یتیم کے سر کے اوپر ہاتھ رکھیں، آپ بے بکان کی خدمت کریں، آپ جو لوگ مفلوق الحال ہیں ان کی مدد کریں، انسانیت کی خدمت کریں، اس سے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوتے ہیں۔ حضرات محترم، یہ زندگی کا چانس ہمیں دیا گیا ہے، اور صرف ایک دفعہ دیا گیا ہے، اور کیوں دیا گیا ہے وہ بھی قرآن مقدس کی زبان میں سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ یہاں رک نہیں جانا، اس سے تھوڑا سا آگے بھی ہے۔ لمن کان یرجو اللہ، اس بندے کے لیے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے
जो अल्लाह से मुलाकात की उम्मीद रखता है, जो मुसाफिर खाने में है, जो यहाँ से लौटना चाहता है। आप कहीं किसी से मिलने के लिए जाते हैं तो सबसे पहले आप अपने लिबास को अच्छा करते हैं, नहाते हैं, लिबास अच्छा पहनते हैं, डेकोरेट होकर अपने आप की तस्कीन करके, तहसीन करके फिर किसी मिलने वाले के पास जाते हैं और उससे मुलाकात करते हैं। तो अल्लाह करीम ने हमें ये चांस दिया है, मैं तुझे मौका देता हूँ, मैं तुझसे मुलाकात करूंगा, जरा डेकोरेट होके आना, जरा हुस्न की खैरात लेकर के आना। वो हुस्न की खैरात का सरचश्मा कहाँ है कि जहां से मैं डेकोरेट हो जाऊं, मैं तेरी बारगाह के लायक हो जाऊं, तू मेरे ऊपर निगाहे मोहब्बत डाले, मैं तेरी मोहब्बतों के काबिल हो जाऊं। वो सरचश्मा हुस्न कौन सा है? फरमाया मुझसे मुलाकात करने वाले मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी जिंदगी में तेरे लिए रोशनी और फिर इरशाद फरमाया लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना कहा है, कामिला नहीं कहा। कामिला कहा जाता मफ़हूम फिर भी अदा हो जाता, लेकिन हसना कहा है। हजरत हसना किसे कहते हैं? हजरत सिराजुद्दीन तूसी रहमतुल्लाह ताला अलैह, हजरत दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह ताला अलैह के मशाइख में से हैं। आप फरमाते हैं हसना हक उस चीज को कहा जाता है जिसको अल्लाह प्यार से देखता है। आप तवज्जो फरमा रहे हैं? इस जुमले पे तवज्जो की है? इस जुमले पे आपने तवज्जो फरमाई? हसना हक उस चीज को कहा जाता है जिसके ऊपर अल्लाह की प्यार की नजर हो, और इसकी चाशनी पूछनी हो तो बाबा फरीद से पूछो, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी से पूछो, जिन्होंने किलों में जिंदगी गुजारी, मेहनतें करते हुए जंगलों में रियासतें इबादतें करते हुए जिंदगी गुजारी, इसलिए कि तेरी प्यार की नजर पड़ जाए, तेरी प्यार की नजर पड़ जाए। और मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सौगात मोहब्बत के तौर पर एक दुआ मुझे अता फरमाई, एक दुआ आपको अता फरमाई कि अल्लाह से मांगना हो, बहुत मुख्तसर अल्फाज में बहुत कुछ मांग लेने की तलब हो तो ये दुआ किया करो, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन्नार। ये क्या खूबसूरत दुआ है कि मालिक मैं सवाली हूँ, मांगता हूँ, मैं तेरी बारगाह में साइल हूँ, मांगने वाला हूँ, मेरे दामन में दुनिया की हर वो चीज डालना जिसके ऊपर तेरी प्यार की नजर हो, वो चीज डालना जिसके ऊपर तेरी प्यार की नजर हो, और आखिरत में भी वही चीज डालना जिसके ऊपर तेरे प्यार की नजर हो। मतलब ये है मैं तेरी नजर में रहना चाहता हूँ, मैं तेरे प्यार की नजर में रहना चाहता हूँ। हज़रत मोहतरम तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में इरशाद फरमाया लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, मेरे नबी की जिंदगी में तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना है, हसीन नमूना है। गोया कि अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी जिंदगी की तजस्सी की जाए तो यूं कहा जा रहा है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत की कोई जुज़ी ऐसी नहीं जिसके ऊपर हमारी प्यार की नजर नहीं पड़ती। और जितना वो रंग किसी की शख्सियत में उतरता है, सिद्दीक़ अकबर की सूरत में, फारूक आज़म की सूरत में, हज़रत उस्मान गनी की सूरत में, अली हैदर कर्रार की सूरत में, दीगर सहाबा किराम की सूरत में, अहले बैत अतहार की सूरत में, और फिर सहाबा के बाद ताबईन है, तबा ताबईन है, सलफ सालेहीन है, जिसकी शख्सियत में वो नूर जितना उतरा है उसके लिए हमारी उतनी ही रजा उतरी है, उतना ही करम उतरा है, उतनी ही मेहरबानियां उतरी हैं। तो हमें ये मौका दिया गया है कि हम अपने आप को डेकोरेट करें। जाना है, मुसाफिर खाना है, कोई बंदा है जिसका क़याम पक्का हो, हमारे वालिद चले गए, हमारे दादा चले गए, हमारे परदादा चले गए, बड़े बड़े सेहतमंद लोग चले गए,
जिनको कभी गुमान भी नहीं था कि मेरे ऊपर बीमारी आएगी, आई, फिर वो उनको लेके चली गई। हजरात आसार मौत शुरू हुए और फिर उन्होंने इंसान की जिंदगी को खत्म कर दिया। तो ये मौका एक दफा मिलता है, ये वक्त एक दफा मिलता है और ये काबिल कदर मौका है हर उस बंदे के लिए जो दुनिया को मुसाफिर खाना समझता है और वो अपने रब से मुलाकात करने के लिए जा रहा है। तो फरमाया बेहतरीन नमूना है, हुस्न का सरचश्मा है मोहम्मद मुस्तफा की जिंदगी उस बंदे के लिए जो अल्लाह से मुलाकात की उम्मीद रखता है। कुरान मुकद्दस में कितने महाल ऐसे हैं जहाँ ये कहा गया है, काफिरों की मजम्मत इस अंदाज में की गई और मोमिनों की तारीफ इस अंदाज में की गई। ये जो मोमिन हैं ये मेरी मुलाकात के मुश्ताक रहते हैं। इनके नजदीक मौत का तसव्वुर, आखिरत का तसव्वुर ये है कि ये मेरी मुलाकात के मुश्ताक रहते हैं। और काफिरों के अंदर खुदा ये है, उनके अंदर गलती ये है, मिस्टेक ये है कि कमले जानते ही नहीं मेरी मुलाकात कितनी अहम है, वो मेरी मुलाकात की तैयारी ही नहीं करते। तो दोस्तानी मोहतरम, अल्लाह करीम ने इरशाद फरमाया वल अस्र, मुझे कसम है वक्त की, मुझे कसम है ज़माने की, इन्नल इंसान लफी खुस्र, बेशक इंसान खसारे में है, इल्लल्लज़ीना आमनू, सिवाय उन लोगों के जो ईमान लाए, वअमिलुस सालिहात, और उन्होंने नेक आमाल किए, वतवासौ बिल हक़, हक बात की तलकीन करते रहे, वतवासौ बिस्सब्र, और सब्र की तलकीन करते रहे। इसकी दूसरी तफसीर ये है कि वल असर से मुराद वक्त असर है, वक्त असर। और हमारे बुजुर्ग फरमाते हैं कि वक्त असर की कसम इसलिए भी उठाई गई कि इंसान जब इस जहान फानी से जाने लगता है, वक्त कोई भी हो, उसे यूं महसूस होता है जैसे असर का वक्त हो गया है। कुरान मुकद्दस में अल्लाह करीम ने वक्त असर की, नमाज असर की हिफाजत की बहुत ज्यादा ताकीद फरमाई। इरशाद गिरामी है, हाफिजू अला सलावात व सलातिल वुस्ता, लोगों नमाजों की हिफाजत करो, खास तौर पे सलात वुस्ता की। और सलात वुस्ता कौन सी है? सलात वुस्ता नमाज़े तो जो है आप जी बिल्कुल, सलात वुस्ता नमाज़े भाई, सलात वुस्ता कौन सी है? नमाज़े असर। नमाजों की हिफाजत करो, खास तौर पे सलात वुस्ता की, नमाज असर की हिफाजत करो। जो नमाज असर की हिफाजत का आदि होगा, जब वक्त रिहलत आएगा, वक्त इंतकाल आएगा, वक्त कूच आएगा, दुनिया से जाने का वक्त आएगा, मौत के हंगाम उसे गफलत नहीं होगी। जैसे मौत का वक्त करीब आएगा तो उसे एहसास होगा मेरी नमाज का वक्त हो रहा है, मेरी नमाज का वक्त हो रहा है, मेरी नमाज का वक्त हो रहा है। आखिरी वक्त में उसे अपने रब की बारगाह में झुकने का एहसास बेदार हो जाएगा कि मैंने तो नमाज पढ़नी है, मैंने तो नमाज पढ़नी है, मैंने तो नमाज पढ़नी है। उसी एहसास में उसका खातिमा होगा और इस तरह खातिमा भी ईमान होता है। वक्त असर दिन गुजरता है, ये मुलाकात का इस्तिआरा भी है। कहते हैं शाम भाई मेरा शाम नहीं आया। जो लोग इंतजार के आदी होते हैं और जिनकी जिंदगियां गुजर जाती हैं जरूर पढ़ते हुए इस ख्वाहिश में कि कभी वक्त आए और आंखों की पुतलियों में जमाल मुस्तफा के नज़ारे उतर और मुझे मेरे नबी की ज़ियारत हो जाए। तो जब वो बुढ़ापे की उम्र को पहुंचते हैं तो उस वक्त वो यूं कहते हैं शाम कोई मेरा शाम नहीं आया, मेरी शाम को शाम लगाई, शाम वेले वाजा शाम नु मारा, जिद शाम शाम कुरलाई, आ जावे शामा बह गईयां शामा, पंछी भी शाम नु आए, सरदार मियां वो शाम चंगी जिस शाम नु शाम गल आए। सरदार मियां वो शाम चंगी जिस शाम नु शाम गल आए। शाम का एक माना वक्त है और एक माना महबूब है। वो शाम चाहे अल्लाह करीम की ज़ात गिरामी हो या उसके महबूब की ज़ात गिरामी हो, लेकिन सरदार मियाँ और शाम चंगी जिस शाम शाम गल आए। तो हज़रात मोहतरम
अल्लाह करीम ने वक्त असर की कसम उठाई, मुझे वक्त असर की कसम है। और फिर इसकी नमाज जो नमाज असर है उसकी हिफाजत की ताकीद की जा रही है, और फिर इसकी तशरीह में इतनी बड़ी दलील कायम कर दी, इतनी बड़ी दलील कायम कर दी, इतना बड़ा वाकया जो है वो अल्लाह करीम ने कायम कर दिया कि कभी भी आप नमाज असर की हिफाजत को फरामोश नहीं कर सकते। खैबर से वापसी पे कभी मुझे शर्फ हासिल हुआ, मैंने खैबर में हाजिरी दी। वापसी पे मकाम साहबा के ऊपर जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहुंचे तो हजरत अली के मुर्तज़ा को किसी काम भेज दिया था। जब आप तशरीफ लाए हाजिर हुए तो उस वक्त सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ चुके थे। हजरत अली जब आए वो काम करके तो फरमाया अली इधर आओ बैठो। हजरत अली बैठ गए, गोद फैला दी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना सरे अनवर हुजूर हजरत अली के मुर्तज़ा की गोद में रखा। वहां तो तामील ही तामील है, वहां तो अमल ही अमल है, वहां तो सताबी की गुंजाइश ही नहीं, बात की भी गुंजाइश नहीं। हजरत अली के मुर्तज़ा ने अपनी गोद फैला दी और कायनात का हुस्न ये हजरत अली की गोद में था। मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज मोहब्बतों के नए बाप खोलना चाहते थे, हुजूर ने आंखें बंद कर दी। हजरत अली के मुर्तज़ा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रुखे अनवर को देख रहे हैं, निसाब हो रहे हैं, कुर्बान हो रहे हैं। उधर सूरज अपने सफर पे है, डूबते डूबते सूरज डूब गया, और जैसे सूरज डूबा तो नबी मुकद्दम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज की जो मोहब्बत हजरत अली के सीने में डाली थी वो बेदार हुई, और हजरत अली के मुर्तज़ा रो पड़े, आंखों से आंसू निकला। अली की आंखों का पानी वो इस तलब में था कि आज अल्लाह करे डूब ही जाए, डूब ही जाए सूरज, मैं अली की आंखों से निकलूं और मुस्तफा के चेहरे को चूमूं। आंखों से आंसू निकला, तेरी आंखों से वो आंसू का लुढ़कना तौबा, मैंने गिरती हुई कौनैन की कीमत है। आंख से आंसू लुढ़का और उसने रुखसार मुस्तफा का बोसा लिया, हुजूर के रुखसार को चूम लिया। मेरे आका ने आंख खोली, फरमाया अली रो रहे हो, वजह क्या, क्यों रो रहे हो? हजरत अली मुर्तज़ा ने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह नमाज चली गई, नमाज चली गई। मुझे और आपको भी सोचना है कितनी नमाजें चली गईं, कभी आंसू निकला? कितनी नमाजें कदा हो गईं, कभी आंसू निकला? कभी रोए? और फिर अहले बैत का खुददार होने का दावा भी है, मोहब्बत अहले बैत के दावे भी हैं, और कभी नमाज की मोहब्बत में आंसू निकला हो तो याद तो करो, और अगर निकला है तो बहुत बड़ी बात है। हज़रत मोहतरम जनाब अली मुर्तज़ा की आंख से आंसू निकला और आंसू हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रुखसार पे गिरा। मेरे आका ने फरमाया क्यों रो रहे हो? अर्ज़ की, या रसूलल्लाह नमाज चली गई, नमाज चली गई। तो मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अली कज़ा पढ़ना चाहते हो या अदा पढ़ना चाहते हो? अर्ज़ की, करीमा कज़ा की आदत ही नहीं है, अदा पढ़ने की आदत, कज़ा की तो आदत ही नहीं है, हम तो अदा पढ़ने के आदी हैं, अदा पढ़ने के आदी हैं। हज़रत अब यहाँ बहुत सारे तरीके थे, बहुत सारी सूरतें थी, बहुत सारे इम्कानात थे कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ फरमा देते, ठीक है अली तुम पढ़ लो, तुम्हें अदा का सवाब मिल जाए। अगर हजरत खुज़ैमा अंसारी के लिए एक की गवाही खुज़ैमा अंसारी की दो के बराबर हो सकती है इख्तियार मुस्तफा से, तो हजरत अली को ये फरमान भी जारी किया जा सकता। अगर हजरत सुराका के लिए सोना हलाल हो सकता है, अली के लिए ये फरमान जारी किया जा सकता था। हज़रात मोहतरम, लेकिन यहाँ मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमान जारी नहीं किया।
बल्कि क्या किया, हाथ उठाए, हाथ उठाए, और वो हाथ इसके हाथ में उठ जाए, फिर जमाना उसका तवाफ करता है। अल्लाहुम्मा इन्ना अलियन काना फी ताअतिका व ताअति रसूलिक। अल्लाह मेरे परवरदिगार, बेशक अली तेरी इताअत में था और तेरे रसूल की इताअत में था। भाई नमाज तो छूट रही है, इताअत तो ये है कि नमाज अदा की जाए, क़याम किया जाए, रुकू किया जाए, सजदा किया जाए, कौमा किया जाए, तशहुद किया जाए, नमाज पढ़ी जाए, तो ये इताअत है, फरमाबरदारी है। लेकिन यहाँ नमाज छूट रही है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ए अल्लाह, अली तेरी इताअत में था और तेरे रसूल की इताअत में था। तो इसका मतलब ये हुआ कि बात असल में मुस्तफा की फरमाबरदारी की है। अगर मुस्तफा के हुक्म पे नमाज पढ़ो तो ये भी इताअत है, और अगर नमाज को हुजूर की नींद पर कुर्बान कर दो तो ये भी इताअत और फरमाबरदारी, ये भी अल्लाह की इताअत और फरमाबरदारी है। हज़रात मोहतरम, आप सारे अहले मोहब्बत तशरीफ फरमा है। ये भी तो हो सकता था कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजज़ा दिखाते किसी बादल की, ये भी हो सकता था कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने इख्तियार का इज़हार फरमाते और हज़रत अली मुर्तज़ा के लिए गुंजाइश पैदा करते थे। लेकिन मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली के लिए जैसे हाथ उठाए तो डूबा हुआ सूरज वापस आ गया। डूबा हुआ सूरज, भाई डूबा हुआ सूरज वापस आ गया। अब सूरज देख रहा है और अली नमाज पढ़ रहा है। आज सूरज देख रहा है और जनाब अली नमाज पढ़ रहे हैं। मैं आलम तसव्वुर में गया, मैंने कहा सूरज, तूने कभी किसी मुफ्ती की परवाह नहीं, तूने कभी किसी कुतुब की परवाह नहीं की, तूने कभी किसी अब्दाल की परवाह नहीं की, तूने कभी किसी शख्सियत की परवाह नहीं की, अपने सफर पे दबा दबा रहते हो, अब बताओ कब डूबोगे। तो उसने सदा दी, अब मुझसे न पूछो, अली से पूछो। ये 5 मिनट में पढ़ ले तो 5 मिनट के बाद डूब जाऊंगा, ये 10 मिनट लगा दे तो 10 मिनट के बाद डूबूंगा, ये आधा घंटा लगा दे तो आधे घंटे के बाद डूबूंगा, ये घंटा लगाए तो घंटे के बाद डूबूंगा। मैंने कहा कभी तूने किसी का इंतजार नहीं किया था, तो आज देख देख के खुश हो रहे हो और अपनी जगह पे खड़े हो। उसने कहा पहले सभी के लिए निकला करता था, आज फकत अली के लिए। आज फकत अली के लिए निकला हूँ। तो हज़रत मोहतरम अल्लाह करीम ने इरशाद फरमाया, हाफ़िज़ू अला सलावात व सलातिल वुस्ता, नमाजों की हिफाजत करो, खास तौर पे सलात वुस्ता की हिफाजत करो। ये कमाल हिफाजत नहीं है, कमाल हिफाजत नहीं है। हज़रत अली मुर्तज़ा की नमाज की हिफाजत के लिए जमाने की नबज़ बदल दी गई। सूरज जमाने की नबज़ है, सूरज जमाने की नबज़ है। सुबह सवेरे हल्की सी नमूद ज़ाहिर होती है तो एक नाम है, अब की सुबह काज़िब है, फिर सुबह सादिक है, फिर फज्र है। जैसे जैसे सफर करता है सूरज तो जमाने के नाम बदलते हैं, जमाने की नई घड़ियों का तायुन होता है। अब दोपहर हो गई है, अब ज़वाल का वक्त हो गया है, अब ज़ोहर का वक्त हो गया है, अब असर का वक्त हो गया है, अब मगरिब का वक्त हो गया है, अब इशा का वक्त हो गया है। जब सूरज अपना हुस्न समेट कर अपनी तारीख रात, अपनी तारीख जुल्फों में सूरज का चेहरा छुपा लेती है तो फिर उसको रात कहा जाता है। हज़रात मोहतरम, ये जमाने के जितने नाम हैं ये सूरज के साथ हैं और पूरे जमाने की नब्ज़ है। और अल्लाह ने बता दिया कि हम अली के लिए जमाने की नब्ज़ बदल के रख रहे हैं। नमाज की हिफाजत के लिए, हजरत अली की नमाज की हिफाजत के लिए जमाने की नब्ज़ बदली जा रही है, जमाने की नब्ज़ बदली जा रही है। तो दोस्तान मोहतरम, ये सलात वुस्ता की हिफाजत का बहुत बड़ा और नाज़िर वाक़या है और खूबसूरत तरीन वाक़या है। तो मैं अर्ज़ कर रहा था कि अल्लाह करीम ने इरशाद फरमाया, मुझे कसम है
वक्त असर की इन्नल इंसान लफी खुस्र, बेशक इंसान खसारे में है, इल्लल लज़ीना आमनू, सिवाय उन लोगों के जो ईमान लाए, वामिलु सालिहात, और उन्होंने नेक काम किए, वतवासौ बिल हक़, हर बात की तलकीन करते रहे, वतवासौ बिस्सब्र, और सब्र की तलकीन करते रहे। हज़रात वल असर की तीसरी तफसीर जो उलमा ने बयान की है वो ये है कि यहाँ मुतलक ज़माना मुराद नहीं है, बल्कि यहाँ ज़माना महबूब की कसम उठाई जा रही है। और ये कुरान के उसलूब के मुताबिक है कि अल्लाह करीम को अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बतों से बड़ा प्यार है। मकान कदम चूम ले तो मकान की कसम उठाता है। ला उक़सिमु बिहाज़िल बलद व अंत हिल्लुम बिहाज़िल बलद। अगर मकान रसूलुल्लाह की कदम चूम ले तो मकान की कसम उठाता है, उन जर्रों की कसम उठाता है जो जर्रे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कदमों का भरोसा ले लेते हैं, और जिन घड़ियों की निस्बत हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हो जाए, अल्लाह करीम उस ज़मान की भी कसम उठाता है। वल अस्र, मुझे कसम है ज़माने माहूद की। वैसे अगर इसको इजमाल में रखा जाए तो फिर माना ये बनता है कि मुझे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 63 साल जिंदगी की कसम है। और अगर इसकी तजस्सी कर ली जाए, इसको अज्जा में तकसीम कर लिया जाए, तो फिर इसका मफ़हूम ये बनेगा, मुझे कसम है उन सुहानी घड़ियों की जब तैबा का चांद माई आमिना की गोद में चमका था। मुझे कसम है उन सातों की जिन सातों में हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने उनको उठाया था और काबतुल्लाह के सामने ले गए थे, और काबतुल्लाह के सामने खड़े होके महबूब की आमद पे शुक्राना अदा कर रहे थे। मुझे कसम है उन हसीन घड़ियों की जब हलीमा सादिया मफलूकुल हाली लेकर आई थी और खुशहाली की सौगात लेके जा रही थी। मेरे मुस्तफा को लेके जा रही थी तो खुशियां लेके जा रही थी, अमन लेके जा रही थी, फौज लेके जा रही थी, फला लेके जा रही थी, सआदत लेके जा रही थी। मुझे कसम है उन घड़ियों की, उन लम्हात की कसम जब हजरत शीमा मुस्तफा को उठाकर उनको लोरियां दे रही थी। मुझे कसम है उन हसीन घड़ियों की जब हजरत आमिना की गोद में वापस किया जा रहा था मोहम्मद मुस्तफा को। और मुझे कसम है उन घड़ियों की जिन घड़ियों में मेरे पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना बचपना गुजारा है। और मुझे कसम है उन घड़ियों की जिन घड़ियों में कायनात ने मोहम्मद मुस्तफा का शबाब देखा है, लाजवाब देखा है, शबाब देखा है, लाजवाब देखा है, जब मासूमियत अपने औज पे थी, बुलंदियों पे थी। मासूमियत का मफ़हूम अपनी पूरी ताबानी के साथ दुनिया में तुलू हुआ। मुझे उन लम्हों की कसम है जब मुस्तफा अपने शबाब पे थे और मासूमियत भी आपकी शख्सियत में अपने शबाब पर थी। और मुझे कसम है उन घड़ियों की भी जब काबतुल्लाह की तामीर हो रही थी और करीब था कि झगड़ा हो जाए, फिर फाइनल हुआ कि संगे अस्वद रखने के लिए कल जो बंदा सबसे पहले आएगा हरम में वो ये पत्थर उठा करके रख देगा। तो फिर जो शख्सियत तशरीफ लाए वो मोहम्मद मुस्तफा थे। उन घड़ियों की कसम जब वो सबसे कह रहे थे एक कोना तू पकड़ ले, एक कोना तू पकड़ ले, एक कोना तू पकड़ ले, एक कोना तुम पकड़ लो, एक कोना तुम पकड़ लो, सबसे कहा कि ये इंतशार अच्छा नहीं, ये खलफशार अच्छा नहीं, उठाओ अब चादर को। और जब उन्होंने चादर उठाई तो मुस्तफा ने अपने नाज़नीन हाथों के साथ हजरे अस्वद को पकड़ के वहां रख दिया। सारा जहान हजरे अस्वद को चूमता है और हजरे अस्वद मुस्तफा की तलियों का बोसा देता है। मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कफ़े अक़दस को चूम रहा था, हजरे अस्वद मुस्तफा के हाथों के बोसे दे रहा था। मुझे उन घड़ियों की कसम है और मुझे उन घड़ियों की भी कसम है जब आपने तमाम कुरैशे मक्का को बुला करके उनको दावत दी और कहा मेरे बारे में क्या जानते हो, तो सबने बेअक्सुबान होकर कहा था
अंत सादिकुन व अमीनुन, आप तो पैकर सदाकत हो, मुझे समय अमानत हो। मुझे कसम है उन घड़ियों की जब आप लोगों को अल्लाह की तरफ बुला रहे थे, और मुझे कसम है उन घड़ियों की भी जब आप हदीम में अल्लाह की बारगाह में सर झुका के इखलास के सजदे कर रहे थे, और किसी ने आके ऊंट की ओट उठा करके तेरे जिस्म के ऊपर फेंक दी। मेरे नबी, तूने शिकवा नहीं किया, शिकायत नहीं की, तूने सब्र किया। मुझे उन घड़ियों की भी कसम है, और मुझे उन घड़ियों की भी कसम है जब लोग तुझे मार रहे थे तो सिद्दीक आके तेरे ऊपर गिर गया। लोगों मारना है तो मुझे मारो, मेरे महबूब को तकलीफ न दो। और इतना मारा गया, इतना मारा गया, इतनी तकलीफ दी गई कि वो सूझ गया। कबीले वाले उठा करके ले गए। जब होश आया, माँ सराने दूध का प्याला लेके बैठी थी और कह रही थी, प्यारे बेटे ये दूध का एक घूंट ले लो, तुम्हें सुकून मिल जाए। तो कहा, अम्मी जान दूध को छोड़े, मुझे ये बताएं मोहम्मद मुस्तफा किस कैफियत पे है। तेरा प्यार सीने में जब उतर रहा था लोगों के, मुझे उन घड़ियों की कसम है। जब सिद्दीक तड़प रहा था तेरी मोहब्बत में, मुझे उन घड़ियों की कसम है। और मुझे उन घड़ियों की भी कसम है जब गारे सौर पे तुझे कोई अपने कंधे पे उठा के ले जा रहा है 8,000 फुट की बुलंदी के ऊपर। बड़े बड़े तनोमंद सेहतमंद लोग वहां जाके खड़े होते हैं, और जब गारे सौर की बुलंदियों को देखते हैं तो वहां एक दफा हर वो बंदा जो सलीमुल फितरत है, जिसको अल्लाह करीम ने इंसाफ समझने का सलीका और करीना बख्शा है, वो यहाँ खड़े होकर ये कहता है, सिद्दीक अकबर, दुनिया में मोहब्बत करने वाले बहुत लोग होंगे, मोहब्बत की दास्तानें बहुत होंगी, लेकिन तेरी मोहब्बत कमाल की मोहब्बत। ओ बेजान यार पूरे भी कह रही थी, विद्वान भी कह रहे थे, पुरुषो तुयूर भी कह रहे थे, जमीन भी कह रही थी, आसमान भी कह रहा था, जमाना कह रहा था। ओ बेजान यार ओ बेजान यार लेके मुझे कसम है तेरी जिंदगी की उन खूबसूरत सातों की, जब सिद्दीक तेरे लिए गार को साफ कर रहा था, और जब तू अंदर दाखिल हुआ तो उसने अपनी गोद पेश कर दी, और तू उसके गोद में सर रख के आराम कर रहा था। मुझे उन घड़ियों की भी कसम है, और मुझे उन घड़ियों की भी कसम है कि जब उसको सांप ने डस दिया तो मूजी तो सिद्दीक को खत्म करना चाहता था, लेकिन महबूब तू तो सिद्दीक को बचाना चाहता था। मूजी सिद्दीक को खत्म करना चाहता है, और मुस्तफा सिद्दीक को बचाना। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान मूजी ने डस लिया, जहर चढ़ता गया, मुस्तफा ने दुआ पे दहन लगाया, आगे आगे बीमारी जा रही थी, पीछे पीछे शिफा आ रही थी। आगे आगे बीमारी जा रही थी, पीछे पीछे शिफा जा रही थी। फरमाया, सिद्दीक रोते क्यों हो? अगर दुख तेरे पाँव में है, सुख तेरी झोली में है। माँ तेरे पाँव में है, यार तेरी झोली में है, दा तेरे पाँव में है, शिफा तेरी झोली में है। मुझे उन घड़ियों की भी कसम है, मुझे ज़माने महबूब की कसम, सुभान अल्लाह। और मुझे उन घड़ियों की भी कसम है जब तुम तो आराम कर रहे थे और मैं जिब्रील अमीन को भेज रहा था, ले आओ मेरे महबूब, बुराक भेज रहा था, मरकूदियों को बारात में भेज रहा था। मुझे उन घड़ियों की भी कसम है। हज़रात मोहतरम, आप इस को जितना खोला जाए, इस इकबाल की जितनी तफसीर की जाए, ये बात बहुत लंबी हो जाएगी। अल्लाह करीम ने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी हयात मुबारका की कसम उठाई, और मैं वल-अस्र, मुझे कसम है ज़माना महबूब की, इन्नल इंसान लफी खुस्र, बेशक इंसान खसारे में है। बात कितनी जामे है, पहले कसम उठाई, फिर हर पे इतना जिक्र किया, बेशक इंसान खसारे में है, सिवाय उन लोगों के इल्लल्लज़ीना आमनू, जो ईमान लाए, जो ईमान लाए।
अब ईमान का मफहूम भी मेरे आका ने खुद बयान फरमा दिया। फरमाया वल्लदी नफ्सु मुहम्मद बियदिही ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासि अजमईन। मुझे कसम है उस ज़ात की जिसके कब्ज़ा कुदरत में मोहम्मद मुस्तफ़ा की जान है, उतनी देर तक कोई बंदा कामिल मोमिन नहीं हो सकता जब तक वो अपने वालिदैन से बढ़कर, अपनी औलाद से बढ़कर, बल्कि कुल कायनात से बढ़कर मैं मोहम्मद मुस्तफ़ा से प्यार नहीं करता। इसका मतलब ये है खसारे से बचना है तो मुस्तफ़ा से प्यार करो, खसारे से बचना है तो मुस्तफ़ा से प्यार करो। फरमाया ईमान वाले खसारे से बचेंगे, वामिलुस सालिहात और जिन्होंने नेक आमाल किए वो खसारे से बचेंगे। हज़रत अल्लाह ने बड़ी खूबसूरत बात इरशाद फरमाई, खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। कि अल्लाह ने मौत और हयात को इसलिए तख्लीक किया है कि अल्लाह करीम देखना ये चाहता है कि तुम कितना हुस्ने अमल लेके आए। अमल नहीं, हुस्ने अमल। अमल की बात नहीं की, हुस्ने अमल की बात की है। और हुस्ने अमल कहाँ से मिलता है? वो सीरत रसूल से मिलता है। हुस्ने अमल का फैसला वो इस तरह किया जाता है कि इसकी जिंदगी में मुस्तफ़ा का रंग कितना है, मुस्तफ़ा की सुन्नत का रंग कितना है, मेरे नबी के अमल का रंग कितना है, मेरे हबीब से इसने कितना नूर कशीफ किया है, इसने कितना रंग लिया है मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। और यही अमले सादे की ताबीर है। फरमाया वो लोग फलाह पा जाएंगे, कामयाबी पा जाएंगे जिन्होंने नेक आमाल की, जो ईमान लाए और उन्होंने नेक आमाल किया। यहाँ तक ये अपनी जिंदगी की बात है। फरमाया बंदे मोमिन की जिंदगी यहाँ पे रुक नहीं जाती, बल्कि वो अपनी भी तस्कीन करता है और दूसरों के लिए भी खैर सोचता है। वतवासौ बिल हक और हक बात की तलकीन करे, वतवासौ बिल सब्र और सब्र की तलकीन करे। ये चार चीजें खसारे से बचने के लिए जरूरी है, चार चीजें। और याद रखना बंदा मोमिन जब दूसरे लोगों के लिए इस्लाह का पैगाम दे रहा होता है तो वो नेकी के घुमांड में ये काम नहीं करता कि मैं बड़ा नेक हो गया हूँ, अब मुझे दूसरों को भी नेक बनाना है। नमाज में आप दुआ करते हैं रब्बना इग़फिरली वलिवालिदैया वलिलमुमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब। या अल्लाह मुझे बख्श दे, मेरे वालिदैन को बख्श दे और जहाँ जहाँ कोई मोमिन है उसको बख्श दे। ये तरतीब क्या है? चाहिए तो ये था कि पहले वालिदैन का जिक्र होता, लेकिन यहाँ पहले अपनी बात है रब्बना इग़फिरली, या अल्लाह मुझे माफ कर। वो इसलिए कि बंदा अपने आप को सबसे पहले बड़ा गुनहगार बना के पेश करता है। सबसे बड़ा गुनहगार तो मैं हूँ, सबसे ज्यादा दाग तो मेरे दामन पे है, सबसे ज्यादा गलतियां तो मुझ में है, तो रहमत का पानी तो मुझे पहले चाहिए ताकि मेरा दामन साफ हो जाए। तो हज़रात बंदा मोमिन की जिंदगी में इस्लाह का मादा जरूर होता है, वो लोगों की इस्लाह करता है, इसलिए कि अद्दीन और नसीहा, दीन तो सरासर भलाई का नाम है, लोगों के बारे में खैर सोचने का नाम है, लोगों के साथ भलाई करने का नाम है। लेकिन बंदा मोमिन नेकी के घुमांड में डूब कर वो लोगों की इस्लाह नहीं करता, बल्कि वो अपनी भी इस्लाह करता है और साथ साथ लोगों की भी इस्लाह करता है। हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था कि अली अगर तेरे जरिए कोई एक बंदा राह रास्त पे हो जाए, राह रास्त पे आ जाए, तो ये अल्लाह के रास्ते में सुर्ख ऊंट देने से कहीं बेहतर है, अल्लाह के रास्ते में खजाने खर्च करने से कहीं बेहतर है कि तुम्हारी वजह से कोई एक बंदा राह रास्त पे आ जाए। हज़रात मोहतरम, बस आखिरी बात ये है कि ये तहजीब हमारी नहीं है कि आप अपना करें छोड़े बाकी को, ये नहीं, ये इस्लामी तहजीब नहीं है, ये यूरोप की तहजीब है, ये यूरोप का फलसफा है, इस्लामी जिंदगी का फलसफा नहीं है। इस्लामी जिंदगी का फलसफा ये है कुंतुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तामुरून बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर। तुम बेहतरीन उम्मत हो, अब तुम्हें अपना फरीज़ा अदा करना है। तुम खैर उम्मत इसलिए हो कि तुम नेकी का हुक्म देते हो और बुराई से रोकते हो। और इसी चीज को अल्लाह करीम ने कुरान मुक़द्दस में सूरह असर में बयान फरमाया कि वो लोग खसारे से बच जाएंगे जो ईमान लाए और नेक काम किए और फिर अपने आप को ही नेकी तक नहीं रखा
बल्कि दूसरे भाइयों के लिए भी उनके दिल में खैर मौजूद थी, जज्बा इस्लाम मौजूद था कि मैं दोज़ख से बचूं तो वो भाई भी बच जाए। मुझ पे अल्लाह की नजर करम हो तो उसके ऊपर भी अल्लाह की नजर करम हो जाए, मुझसे मेरे महबूब राजी हो जाए तो उसके ऊपर भी अल्लाह के महबूब राजी हो जाए। तो सबको अल्लाह की मोहब्बत की नजर का इस्तेहकाक बख्शने के लिए और महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब करने के लिए दावत और इस्लाह का फरीज़ा अदा करना चाहिए। जैसे आप लोग माशाअल्लाह ये 7 रोज़ा इस्लाही प्रोग्राम का आखिरी सेशन था जिसमें आज मेरी और आपकी हाजिरी हुई। हज़रात मोहतरम, अभी शाबान की घड़ियाँ हैं, खत्म होने को हैं, फिर उसके बाद रमज़ान की घड़ियाँ शुरू होंगी। तो ये गरीबों के लिए तोहफा है। हर बंदा ये चाहता है कि मैं मक्के मदीने जाऊं, बड़ा ठहर के आऊंगा। हर बंदा चाहता है कि मैं मक्के मदीने क्यों जाऊं। हर बंदे की ख्वाहिश है कि मैं मक्के मदीने जाऊं। ये ख्वाहिश है हर बंदा मोमिन के सीने के अंदर। क्यों? वो धरती ऐसी है कि जिसको निस्बत है मेरे रसूल से, वो जगह ऐसी है कि जिसको निस्बत है मेरे अल्लाह से। तो उसके लिए तो सफर करके जाना पड़ता है। तो ये शाबान जिन घड़ियों में इस वक्त भी हम मौजूद हैं, इसकी हर घड़ी के साथ हुजूर को निस्बत मौजूद है। भाई मदीने जाके भी कोई सोया रहे तो उसका अपना वक्त है ना। काबतुल्लाह के सेन में भी जाके कोई टांगे उसकी तरफ करके बैठा रहे तो उसकी अपनी छुनी किस्मत है ना। इसलिए तो नहीं है ना, इसलिए तो काबे में नहीं गए कि काबे की तरफ टांगे करके बैठे सोए थे। ये तो शून्य किस्मत है। वक्त तो ये है कि अल्लाह ने मौका दिया है। मदीने में हाजिरी का तो मदीने की कदर करो, और मक्के में हाजिरी का मौका मिला है तो मक्के की कदर करो, अल्लाह के घर की कदर करो। हज़रात मोहतरम, ये शाबान की घड़ियाँ हुजूर की निस्बत से माला माल हैं और रमज़ान की घड़ियाँ अल्लाह की निस्बत से माला माल। तो ये सभी खुद आया है आपके अपने घर में, और आपको दरवाजा भी खोलना नहीं पड़ा, खुद ही आ गया है। फरमाए रमज़ान आ रहा है, दरवाजा खोले या ना खोले आ जाएगा। मेहमान की कदर करना ये हमारी जिम्मेदारी है। दुआ है कि अल्लाह करीम हमें खुसरान से, खसारे से, घाटे से महफूज फरमाए और कामयाबी के रास्ते पे चलने की तौफीक मरहमत फरमाए। वमा अलैया इल्लल बलाग।